Wow, and welcome back to Weekend on Wheels, and I'm Girish, and today I am at Radio Mirchi, Mangalore. So I just got a call from RJ Ajay saying that he wants to have a chat with me regarding regarding my latest endeavor, which was riding a Bounce Infinity E1 from Kanyakumari to Khardungla. I said, why not? Let's have fun. So I'm here, so I'll see you guys right after this intro video. First take, like before your intro, I'll create a suspense. Okay. I'm gonna hijack your show first. कर लो. But nice यार, like I called, मैं expect नहीं कि आप free रहोगे. नहीं. So in fact, when you called, it was just right time. So what I'm gonna do today is I'm gonna hijack Ajay's show. Done. And see if we can have lots of fun, because this is nostalgia for me. I miss these days. I spent, like, I've literally slept in this kind of situation. I've slept in the studio. Oh, I've really? slept in the studio for weeks together. That was the kind of passion that we had initially when radio was just getting launched here. Okay. और महीनों बिताया इसमें. And first thing I would say, I'm a big fan of you. Oh, I'll tell you why. There are a couple of reasons. okay. I listen to radio every single morning, especially my brother. He puts on the minute he wakes up at about 7 o'clock, radio starts. Okay. It's the hold जो आपके पास है ना, जो हिंदी का hold and the grip, I think phenomenal यार. Nobody can say you're from South, you're from Udupi, you're from Dakshina Kannada guy. Nobody can say that. So for me, Thank you so much. it's just a kickstart for me, my day, and I continue my day from there. So yes, thank you. Thank you so much. And today I have brought you on the show. Yes. आज भाई तुम भी kickstart दो साथ में, double धमाका करें. डबल धमाका करते हैं. So आज का show is double धमाका. So we have a lot of power pack session today. So we're just gonna have a lot of fun. So it's gonna be bilingual today. Absolutely. Mix between Hindi, English, and it's gonna be a lot of fun. Absolutely. Yes. We will make sure that fun happens. Yes. So Girish bhai, welcome to the studio, and I'm really happy that you've taken your valuable time and come here. नहीं, my pleasure. Always. So यार इतना बड़ा achievement पाया है तो कैसे लगता है? मतलब दिल में खुशी तो बहुत होती होगी. सच में बताओ. हाँ. I personally don't feel like it's a really big achievement. It was when I did that. The feeling was incredible. जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, the feeling was, my God, like top of the world. Okay. And then I start thinking to myself, अब अगला क्या है? What next? Oh, nice. So that is what successful people do. They achieve something and they want something more to do. Correct. And you are thinking next क्या achieve करना है, and Correct. then you go up and up the ladder. So according to me, success is not the end. Right. It's just a stepping stone for the next success. Wow, very well said, very well said. And मुझे ऐसा लगता है कि when I saw that video, you coming out of the airport and your friends were like putting that feta and everything and celebrating your achievement. I was so happy and I messaged you immediately. Yes. I am so happy that you have achieved this feat. I was shocked. In fact, मेरे को तो zero ये था, भनक था उसका. And when I see this guy, just this only one person, उसने कॉल किया था, भाई मैं आ रहा हूँ तेरे को पिक करने के लिए, और ज्यादा ना सर पे मत रख के बहुत लोग आएंगे वो सब. All forget, I'm coming. मैंने कभी बोला जो लोग चाहिए, you just come. तो वो आ गया. And these guys never even came in the frame. Everybody's like, I have a couple of friends. The person who came to pick me is from Bangalore, Karthik. Then my friends from Adyanadka, that is ये अपना Ramnath, and then Achal, Guru, Naveen, who's never been there. All these guys just came running. I'm like, what is this? So you were surprised. Yeah, I was like super surprised. I was not ready for it. Okay. First of all, it's just that I was so overwhelmed that we completed something like this, which is first of its kind in the country. Correct. Nobody has done so far, and I had this fear that will I be able to pull this off? Okay. And because you don't know, it's new thing. It's Correct. It's a new technology for a lot of people, and including me in the country. So I wanted to achieve that. So my plan was only to ride till Kashmir. Okay. And then when I did Kashmir, I found this is too easy for me. I mean, like, पता ही नहीं चला कब पहुंचे कश्मीर. I said नहीं. ये बाएं हाथ का खेल है. हाँ, ये तो बाएं हाथ का खेल है. Okay. Then कश्मीर पहुंचने के बाद I said,
this is not I wanted real challenge. So I said, I'll do Khardunga. Oh, And I said, okay, let's do it. let's reach the topmost. Topmost, chalo. It used to be world's highest motorable pass Okay. till last. सैटरडे मॉर्निंग की शुरुआत तो मैंने कब से कर दी है, लेकिन आज कुछ शो पर अमेजिंग होने वाला है। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ अजय आपके साथ, एंड यहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए, एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज शो पर मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक गेस्ट है, एंड द गेस्ट इज फ्रॉम आवर ओन मैंगलोर, आवर ओन कुडला, जहाँ पर अगर मैं बाइकिंग एडवेंचर की बात करूँ, टू व्हीलर्स के बारे में नॉलेज की बात करूं, फोर व्हीलर्स के बारे में नॉलेज की बात करूं, तो इनका नॉलेज बहुत बेहतरीन रहा है। He has got this experience of more than 2 decades in fact, and यहाँ पर अगर मैं इनके करियर की बात करता हूँ, तो इनका करियर जो है उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं इन्होंने, जहाँ पर सेल से कंटेंट क्रिएशन से लेके एक कंप्लीटली एडवेंचर ट्रिप पर निकल गए ये, एंड फाइनली इन्होंने एक ऐसा एडवेंचर किया जिसके बारे में मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, एंड थोड़ी देर में इनका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। लेकिन कौन है ये मेरे शो पर जो आज कब्जा करने आए हैं? वेल, बात होगी थोड़ी देर में ओनली ऑन 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ अजय आपके साथ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, एंड साथ में शो पर किसी को लाना पड़ेगा, लेकिन मैं किसको लेकर आया हूँ आज? आपने गेस नहीं लगाया तो चलो मैं इनका इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ। सो मेरे साथ आज गिरीश शेठ हैं फ्रॉम आवर ओन मैंगलोर। वीकेंड ऑन व्हील्स से ये बहुत फेमस है, जहाँ पर वीकेंड ऑन व्हील्स नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है इनका, जहाँ पर बाइकिंग एडवेंचर ये करते हैं, एंड लॉकडाउन के टाइम पर जो है बहुत सारे टिप्स भी दिए होंगे इन्होंने आपको व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स को कैसे मेंटेन करना है, खड़ी हुई है गाड़ी तो यहाँ पर ये खराब ना हो तो इसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन आज मैं इनको शो पर लेके आया हूँ आपके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करने के लिए। सो गिरीश, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। Good morning Ajay, wow, and welcome back to Weekend on Wheels, and I'm Girish। इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का शो जो है ना मैं होस्ट करने वाला हूँ, और मुझे पता नहीं कितने आपके लिसनर्स ये चाहेंगे कि मैं होस्ट करूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो चाहेंगे कि आप होस्ट करो, बिकॉज कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी बनता है यार, तो मुझे वीकेंड मतलब जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो आपकी छुट्टी के चक्कर में ना मेरे को आप यहाँ से जल्दी निकलवाओगे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव कम एंड यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा इनके बारे में, इन्होंने बहुत कुछ किया है लॉकडाउन में, आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर के बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं कि गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी की कंडीशन कैसे मेंटेन रखें। लेकिन यहाँ पर इनके करियर की जब मैं बात करता हूँ, सेल से इन्होंने शुरू की, कंटेंट क्रिएशन किया, उसके बाद पूरा पलट ही दिया चैप्टर को। उसके बाद ये एडवेंचर पे निकल गए। अगर बाइकिंग की बात करते हैं, सो अब जहां सोशल मीडिया की दुनिया में एंटर होके 5 साल हो गए हैं इन्हें, जहां पर लोगों के साथ ये बात करते हैं, आपने भी इनके वीडियोस वगैरह देखे होंगे, एंड रिसेंटली इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू राइड अ ई स्कूटर, एंड यहाँ पर ये जो है कन्याकुमारी से लेके खारदुंगा तक चले गए। हाँ जी हाँ जी। अक्सर लोग कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर जाते हैं, तो ये कैसे चेंज कर लिया? ओके, तो आपको पता होगा लॉकडाउन के टाइम पे मेरी तबीयत ना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। करेक्ट। उसके बाद मैं ठीक हो गया हूँ, मगर दिमाग में ना जो कीड़ा है कि आप नॉर्मल हो चुके हो या नहीं, वो हमेशा रहती है। तो वो वहम निकालने के लिए मेरे को कुछ करना था, तो मैंने प्लान किया कुछ करूँगा। मुझे ऐसा कुछ करना था जो लोगों को इम्पॉसिबल दिखे, अगर मेरे को जब मैं देखता हूँ वो आई एम पॉसिबल दिखे। वाह। तो ये वाला चीज करना था, और इस चक्कर में ना मेरे को एक दिन ये आइडिया आया कि ई स्कूटर अभी सब लोग बात करें और बहुत लोगों को परेशानी भी है इसकी वजह से। तो मैं सोचा ई स्कूटर में क्यों ना करूँ, K2K करेंगे। नॉर्मली K2K इज कश्मीर टू कन्याकुमारी या कन्याकुमारी टू कश्मीर। मैंने उसमें भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट डाला और बोला मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट करूंगा, मगर खारदुंगा निकल जाऊंगा, कश्मीर पे नहीं रुकूंगा। क्या थोड़ा डिफरेंट हो यार, यू आर लिटिल यूनिक। मतलब जो सभी सोचते हैं वो नहीं सोचते, तुम हटके सोचते हो। थोड़ा हटके सोचने से ही थोड़ा कुछ बन सकता है नया चीज। अगर आप स्टैंडर्ड सोचोगे, सेम वाला करोगे, तो सेम रिपीटेटिव वाला ही काम करोगे। तो इसमें वो बोलते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आई थिंक हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लेकिन इंस्पिरेशन तो तब होगी जब आप इनकी जर्नी के बारे में सुनोगे। ये जो जर्नी इन्होंने तय की है ई स्कूटर पर, इट इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये बहुत ही बड़े डिस्टेंस वाला जर्नी है जो इन्होंने तय किया है, एंड इसी के बारे में बात करेंगे जब हम लौट के आएंगे। लेकिन तब तक आप यहाँ से कहीं मत जाओ, स्टे ट्यून्ड टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। अक्सर ऐसा होता है ना,
जो हमारा दिल चाहता है वो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरे करते हैं उसे देखकर हमें भी वो करने का मन करता है। वेल गिरीश सेठ की ही मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर अब मैं जो है टू व्हीलर का फैन तो हूं ही, लेकिन मम्मा की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इतना ज्यादा टू व्हीलर चलाने मुझे नहीं मिला। लेकिन आज फाइनली जब हमारे हीरो गिरीश सेठ यहाँ पर हैं फ्रॉम मैंगलोर इटसेल्फ, तो यहाँ पर इन्होंने जो जर्नी तय की है, इसे देखकर मुझे लगता है आप भी इंस्पायर हो जाओगे, आप भी सोचोगे चलो यार इस वीकेंड गाड़ी लेकर कहीं दूर चले जाए। पक्का। और यहाँ पर इन्होंने ऐसी गाड़ी ली जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस गाड़ी में ये इतनी लंबी सफर तय कर सकते हैं, जहां पर इन्होंने एक ई स्कूटर में जर्नी तय की ऑफ 4,340 किलोमीटर्स इन 19 days. He covered 11 states and that too on a e-scooter. What made you do this, bro? तो जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ ना, लोग तो दो चीजें बोलते हैं। एक तो ये बंदा संकी या पागल हो सकता है, Okay. या इसको पता नहीं है क्या कर रहा है। सच में पागल ही है। I think craziness चाहिए कभी कभार। हाँ, पागलपंती चाहिए, जरूर चाहिए। So even in the ride, whenever I used to meet people and all those things, again they used to say you should be either a nutcase or you really don't know what are you up to. And I say I don't know what I want to answer you guys, but then I'm happy with what I'm doing. Wow. This is something that I wanted to do, and like I mentioned, this started all because that I wanted to prove two things. One, to myself, that I'm back to normal. I'm doing superb and fantastically. You know. In terms of health, and that can be only tested and tried if you have to challenge your body again. Absolutely. And going to Khardungla is not a joke normally, because the air is very thin. You're at 18,000 above sea level. जब ये सब होता है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मेरे को ना ये ट्राई करना था, क्योंकि बिफोर दिस आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम, 3-4 बार तो हो ही चुका है। Correct. So I want to see अगर अभी आई एम फिट इनफ टू डू दैट। सेकेंड पॉइंट वाज, ई स्कूटर्स के बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं और बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं। See, if you look at it, it is definitely the future of mobility. Correct. और आज नहीं तो कल आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। Right. So if you want to do it tomorrow, why not today? Wow. You know, that was the thing. And also to show people कि e-scooter is here to be, for the next future. And I try to break it. It's not like मैंने कुछ किया नहीं. I try to break it a lot, but then thank God it stood like a rock, and मेरा पूरा जर्नी सफर जो है आसान करके ना, it's been an amazing 19 days that I've spent on road with various weather conditions, various road conditions, various culture conditions, and there's so much difference that I felt. It's just breathtaking for me, and when I look back at that, I feel, how did I even manage to think something like this? But yes, इन्होंने सोचा और इन्होंने कर दिखाया। Let me tell you, गिरीश सेठ ने एक बहुत ही बढ़िया चीज अचीव की है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अपने मैंगलोर दा मुंडा है यार। और यहाँ पर इन्होंने ये जो चीज अचीव किया है, तो ये भारत में पहले व्यक्ति हैं। इज द फर्स्ट पर्सन इन द कंट्री टू अचीव दिस फीट राइडिंग अ ई स्कूटर। ही ट्रैवल्ड फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टॉप ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न मोस्ट टॉप ऑफ द कंट्री, फ्रॉम कन्याकुमारी टू खारदुंगा। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने 19 दिनों की जर्नी कवर की है यार। Congratulations on achieving this feat, bro. Thank you so much, bhai. And I'm so happy that I got an opportunity to come and talk here and also tell people about the journey. So बहुत thanks आपके लिए, और मिर्ची को भी बहुत थैंक्स। एंड आई लिसन टू मिर्ची ऑल द टाइम। आपको मस्का मारने के लिए बोल रहा हूँ। फिलहाल हम जो है आपको मस्का मारते हैं कुछ गानों के साथ, जहां पर गाने यहाँ पर चलेंगे, अमेजिंग बातें यहाँ पर होगी, एंड यहाँ पर आपका साथ मेरे साथ बने रहे, बिकॉज नाउ व्हेन आई कम बैक हम बात करेंगे अबाउट द चैलेंजेस दैट ही फेस ड्यूरिंग दिस जर्नी, ओनली ऑन 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज कुछ। सवाल ये है, क्या आप भी ऐसी अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो? वेल, मैं किसी बाइक जर्नी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ की जर्नी की, बिकॉज कई बार ऐसा होता है आप बहुत कुछ सोचते हो। अब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कोई जर्नी प्लान करता हूँ या कहीं बाहर जाना होता है, तो मुझे थोड़ा सा क्या है, घर की कहते हैं लत है, मतलब भाग के घर पे जाना है वापस। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट गिरीश सेठ, तो यहाँ पर इन्होंने 19 दिन अपने घर से दूर बिताए हैं, एंड ही
मेड अ रिकॉर्ड आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर गिरीश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ई स्कूटर पे जब आपने ट्रैवल करने का प्लान किया, यू अचीव दिस फीट, ओके, राइडिंग ई स्कूटर, गोइंग टू द टॉप मोस्ट नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, तो कभी ऐसा हो मतलब व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी नर्वसनेस हुई, उसके बाद फैमिली का याद आया, फ्रेंड्स का याद आया? तो ओके, आई विल पुट इट इन अ नटशेल। तो पहले नर्वसनेस का बारे में बात करते हैं। तो जब स्टार्ट किया मेरे को कुछ नर्वसनेस नहीं था, बिंदास था, मतलब दिमाग में कुछ था ही नहीं, मेरे को इतना ही था कि मुझे ये कुछ करना है। पहला दिन जब मैंने गाड़ी चलाई तभी मेरी फटी। ओह तभी मेरे को पता चला कि व्हाट आई हैव गॉट माई सेल्फ इनटू। क्योंकि सफर रहेगा 19 दिन का, टॉप स्पीड रहेगा 65 किलोमीटर पर आवर, ओके, और जो स्ट्रेच है, द स्टार्टिंग स्ट्रेच कन्याकुमारी से अप टिल यूपी तक इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हीट वेव। ओके, पहले दिन पे ही फट गई हमारी। Oh. 10 बजे, 10:30 या 10:30 बजे कड़कती धूप, 50 डिग्री, पिछवाड़े में आग लगी। मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था। और उस दिन मैंने सोचा, भाई साहब मेरे को पता है नहीं व्हाट आई हैव कॉल्ड माई सेल्फ इनटू। तो उस दिन मेरे को सच में बोलूं नर्वस हुआ था मैं, कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। पहले दिन पे ऐसी अगर फट रही है तो और 18 दिन में कैसे गुजारूंगा यहाँ से। तो ये वाला सीन हो गया था, थोड़ा सीरियस बन गया था। मगर शाम तक हम पहुंच गए, और शाम जब हम लोग अपने होटल पहुंचे तभी बारिश आ गया। भाई साहब फिर से मौसम चेंज। मतलब ये दिमाग का मौसम चेंज हो गया था, पूरा माइंडसेट ही बदल गया। हाँ, माइंडसेट ही बदल गया था। अरे वाह, ये तो अभी बारिश आ गया, कल तो बहुत सही रहेगा राइड वाला सीन। तो हमने स्टार्ट करी, और जैसे तैसे स्टार्ट करते हैं। तो साउथ साइड इज अपने ही लोग हैं, हमें पता है, सो डिडंट हैव टू मच ऑफ अ दिक्कत। चले गए, बीच बीच में लोग जब भी मेरे को ई स्कूटर में देखते हैं ना, दे विल हैव टू डिफरेंट एक्सप्रेशन। एक एलियनेटेड लुक, मेरे को देख के ना ये कौन है, एलियन आ गया, बहुत अंतरिक्ष से बाहर, ये कौन आ गया, हेलमेट पे कैमरा लगा के ई स्कूटर चला रहा है, कौन है ये। और दूसरा एक लाइक बहुत ही सरप्राइजिंग, मतलब ये क्या चीज है, मतलब साउंड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, चाहते ही जा रहा है। एंड दे कम इन क्लोज टू मी और पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या है, क्या चीज, क्या है। देन आई एक्सप्लेन कि आई एम डूइंग K2K ऑन दिस। K2K क्या होता है? कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें ये चल जाएगा, ये कितना माइलेज देगा, ये क्या, मतलब दे थिंक इट्स लाइक अ टॉय। करेक्ट, क्योंकि ना आवाज ना कुछ, और टॉय के जैसे होता है। तो 2-3 फैमिली व्हेन आई इंटरेक्टेड, ये चल जाएगा। यहाँ तक तो चला के आया हूँ, अभी तो 1000 किलोमीटर हो गया, चला के आया हूँ, आगे भी चलेगा लगता है। क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। इंस्टेड आई रादर बी क्वाइट एंड से जब ये होगा ना तभी आपसे बात करूंगा। एब्सोल्युटली। एंड मतलब अभी मैंने इनसे देखो पूछा इनकी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, बट ही इज सो एक्साइटेड अबाउट हिज जर्नी कि जर्नी के बारे में बता रहे हैं। ये बोल रहे फैमिली के बारे में बाद में बात करूंगा। यार मुझे तो जर्नी पूरी करनी थी, मैंने जर्नी पूरी कर ली, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। नहीं, द गुड पार्ट इज नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, द न्यू एज, you have the ability to see your family anytime and every time you want to see them. Absolutely. हाँ. तो वीडियो कॉल से बन जाता था. So I used to do video call every single day with my family, my wife, my daughter, and they used to be my actual strength. Oh. Okay. So my wife is the biggest supporter of my adventure that I do, and no matter what, she is there every single time and taking my back. And similarly, my daughter also, and my parents, that's my mom, my brother is another biggest supporter, my sister-in-law and everybody. So family has been such a strong supporter that मेरे को ना वो वाला पार्ट भूल ही जाता हूँ जब मैं सफर में हूँ, क्योंकि I know they're praying for me and they want me to do good. Correct. और थैंक्स टू द न्यू एज टेक्नोलॉजी, जब मर्जी चाहो फोन उठा लो, यू डू अ वीडियो कॉल और बात कर लो फेस टू फेस, दिखा दो कि मैं सही हूँ, एंड दे विल से वी आर आल्सो फाइन, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खाना पिया सब खाया, बस उसके बाद फोकस चला जाता है। करेक्ट। ये सफर अभी क्या करना है। तो सफर में घुस जाते हैं। लेकिन इस गुड़िया को जो है ना आपने कन्वर्ट कर दिया। हमने कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम भी रख दिया था मैंने। जब पहला 1000 किलोमीटर हुआ था उसके बाद मैंने उसका नेमिंग सेरेमनी रख दिया। आई नेम्ड द स्कूटर एज रूबी। वाओ, रूबी रख दिया आपने। हाँ जी। तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? रूबी क्यों रखा? क्योंकि एक वो तो रेड कलर है, ओके, एंड शी इज अ जेम ऑफ अ स्कूटर। ओह, आई वांटेड दैट जेमनेस टू बी represented, and
नाइस। इसीलिए रूबी रख दिया। ऐसे इसके ऊपर मुझे एक चीज याद आया है जिसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन तब तक आप यहाँ से बिल्कुल कहीं मत जाओ। स्टे ट्यून्ड टू 98.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज गुड। I have hijacked a complete show of Ajay and he has no clue. Now he has to sit and edit. Normally it takes 3 minutes for one RJ, as in what do you call it, RJ mention or his talk time. We've made it 7 minutes, 8 minutes, 6 minutes and it's just going. यार ये मतलब मैंने सोचा था कि ये शो हाईजैक करेंगे, मतलब बोल रहे नाम के लिए, बट हाईजैक क्या है, इन्होंने तो मतलब खुद ही पायलट बन गए। बट इट वाज फन यार, बहुत मजा आया। super fun. And we wanted to do something like this for a long time, but then I never found there was a good opportunity to do something like this. Because if you have to talk, there should be some content, there should be some reason to come and talk and do this interaction. This does not make sense. कुछ भी कर लो और कम बात करो. I just wanted to have a तगड़ा content where he also can't say no. हाँ, मतलब ऐसा तगड़ा कंटेंट के भाई आना ही पड़ा स्टूडियो में, मतलब बुलाना ही पड़ा। मैं जैसे इसीलिए फर्स्ट टाइम आई टुक द माइक एंड लाइक अरे चलो बात करते हैं। बट आई एम सो हैप्पी गिरीश, यू हैव गिवन मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड I have been in touch with him from I think almost more than 2 years, 3 years almost. Yes, almost 3 years now. But he was the one who approached me and it's always a great feeling. मतलब lockdown पे we did this live video. Yes, we went crazy. It was very crazy nice. and he always made a point, even if it did not work, नहीं ठीक है, मतलब अगली बार कर लेंगे अजय भाई, कोई नहीं ठीक है करेंगे। So he had that urge and मेरा उनसे बात होता था and I used to okay करेंगे and today finally the day came wherein हम लोग ने आज किया, हम लोग बोला शो को हाईजैक करेंगे। मैंने पूरा हाईजैक कर लिया। लिटरली ऐसा होता है कि ऑन एयर आई स्पीक फॉर जस्ट 1 minute और 2 minutes मैक्स। कभी कभार हो जाता है, मतलब फीलिंग में आ गए तो ज्यादा बात कर लो, लेकिन आज तो लगता है फीलिंग की सारी तोड़ दी है। इतना बात किया मतलब जैसे बारिश आ रहा ना बाहर, वैसे बातों की बारिश हो गई एंड मुझे ऐसा लगता है जो थॉट्स इन्होंने दिमाग में डाले, जो विजन डाला है दिमाग में, दैट इज क्रेजी यार। मतलब ये जर्नी जो इन्होंने कंप्लीट की है, आई कुड नेवर इमेजिन। मतलब ई स्कूटर पर द काइंड ऑफ पेशेंस, द टेम्परामेंट दैट यू नीड। आई थिंक इसीलिए बाल थोड़े लंबे भी हो गए और सफेद भी हो गए। अगले मुझे लगता है अगले मूवी में जहां पर अगर मैं बात करता हूँ यश के साथ, तो शायद से एक रोल मिल जाएगा इनको। बट रियली यार आई अप्रिशिएट द फैक्ट, लाइक चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो जाए, चाहे धूप हो, छाव हो, बारिश हो, तेज हवा हो, बिजली कड़कती हो, लेकिन अपना गाड़ी चलते रहेगा। यू प्रूव दैट 4,340 किलोमीटर्स इन 19 days, covered 11 states and that too back to back from Kanyakumari to Khardungla. Directly, yeah. So our first stop was directly in Leh. Okay. 17 दिन straight ride, no stop. Okay. 18 day we stopped. The reason we stopped was to acclimatize our body, because अगर आप ऊंचाई पे जाते हो, then your body should be acclimatized, वरना you can get altitude sickness. Okay. And that can lead to a lot of other issues. Okay. तो इसीलिए हमने 1 day stay किया लद्दाख में, and the next day we went directly to Khardungla. इसके लिए हम लोग ऑल्टीट्यूड ऊपर जाते ही नहीं, हम हमेशा ऑन एयर रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं। So yeah, but I think it was a lot of fun interacting with you and knowing about your journey, because I believe every person has a different journey. Absolutely. Not talking about the bike journey that you did, in life. In life, in general, the kind of journey people have. So you have an exciting journey. I would say you have an adventurous journey in your life. Your family is supporting you. That is a backup. The friends, you are making sure they support you so much. Absolutely. And I believe it's a very big achievement for you. Absolutely. So इन्होंने अब बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है डाला है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है सबमिट किया है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो कम्प्लीटली पूरा हो जाए. एंड एज यू ऑलवेज बी वेरी रॉकी. मतलब वो होता है ना कि हाँ कुछ करना है. पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो इनके अंदर देखा था वो अर्ज था. मतलब वीडियो अगर रुक भी रहा है लाइफ में कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट करेंगे, मैं आऊंगा. आई थिंक नेटवर्क इशू विल टॉक ओके. एंड वी लिटरली वेर लाइव ऑन द आधा घंटे के लिए प्लान था, 1.5 घंटा तक चला. 1.5 घंटा लाइव किया एंड उसके बाद बातें हुई. एंड आई बिलीव दैट अर्ज यू हैव ना, वो आ गया ना आपके अंदर, कुछ अलग करना है और आगे करना है. अभी खारदुंगला तक तो चले गए 1800 फीट अबव सी लेवल. 18,000 सॉरी 18,000 फीट अबव सी लेवल. एंड उसके बाद अभी 19,000
ओमिंगला है which is 19,000. आई थिंक वो टारगेट ऑलरेडी बना दिया है ना? वो कुछ नहीं, वो तो वो तो ऐसे ही मतलब बाहर का खेल है, इधर तो पहुंच गए हैं तो और 1000 किलोमीटर तो कुछ 1000 मीटर कुछ नहीं है. So in fact, I'm a very big fan of Ajay. The reason what I say is every morning the kind of voice and the vocals that he produces, and he makes that vibrant presence, and also maska maar raha hu and also na his voice is like that mandir ki ghanti, the positivity. Every morning when he starts na that when you listen to that voice, whatever negative thoughts you have in mind is just vanished. This is what exactly happens when you ring a bell at a temple, thun, and then all waves pass ho gaya, your mind is back to clean. So this is what the closest reference I can give. इससे ज्यादा नहीं serious, on a serious note. हाँ मतलब I think it's a very good compliment that I've received. I'm serious about this. I'm feeling like a घंटी. बजा के कोई नहीं. So yeah, as he said, मतलब appreciation जब मिलता है तो अच्छा लगता है यार, तारीफ मिलती है तो किसको अच्छा नहीं लगता. अब जहाँ तक सही वाली मिली तो अच्छा ही है. हाँ ये सही वाली है ना. हवा में नहीं बिठा. हवा में तुम हमेशा बैठते हो. ऑन एयर हमेशा रहता हूँ मैं. ऑन एयर हमेशा हो, तो मैं क्या हवा से बैठा. तू तो उसका चैंपियन है. Okay. But this is what I really feel from my heart. So this is what I really feel, and that's where actually I connected with you. The reason I connected with you was the kind of positivity that you're spreading, and your voice is so distinct. So every morning when I listen in the morning, I used to connect with that, and that's why I thought I need to talk to you and connect. And wo connection led us to come till here. Yeah, like as you have spoken, इतना तारीफ किया लिया है तो सच्ची में एक बात बताता हूँ. So when I come, okay, when I do the live show, जब बात करता हूँ, so one thing which I have in my mind is a preset. Though I am doing a show live, so एक preset है mind के अंदर that tells me if there is somebody who is listening to you, okay, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं जो बात कर रहा हूँ 1 मिनट या 2 मिनट, उसमें से एक वर्ड तुमको ऐसा टिक हो जाए, when you forget all the negativity and you will say अरे यार फिर से करते ना यार, चलो ट्राई करते ना यार. This is exactly what I was saying. So I think everybody gets their good and bad days, and I'm sure you will also have a bad day. But then the minute he is inside here in the chair and talking to in the mic, irrespective of what the worst day that he might have had, he will make sure it is not passed on to the listener. And at the same time, he'll make sure he turns out positive in no time. Yeah, मतलब मैं एक चीज में बहुत strongly believe करता हूँ. No matter what the situation is, sometimes it happens na, you have to take it out, you have to vent it out, so you roar kind of thing, okay. So screaming loudly helps you release all the pain. So I have been through that days as well. But when we come inside the studio, when we talk, that calmness, that coolness you have to get. And when somebody, if you're having a bad day, but if you're trying to make your listener feel good, and somebody messages, hey, hi Ajay, good morning, it's so nice to hear you, I feel so happy. वो एक काफी है यार. वो एक काफी है. I will tell you, like yesterday, अभी तो messages social media पे, there is an old listener of mine. She's like, hey Ajay, I have not heard any riddles from you for a very long time. So I changed the segment. I started with the weather report. So he's like, start the segment. So it feels good. Good. When you get the feedback. हाँ, जो feedback मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है. And especially people from Mangalore or Kudla, they're so loving, and मतलब the kind of support they give, they're very honest. Okay. हाँ मैंने आपसे भी पूछा यार कुछ फीडबैक दो, आपने बोला डेफिनेटली वो आता है. So I'm still working on that. That is in my mind. Okay. I'm not embarrassed about it at all. There's nothing to be wrong. I mean, that will only help you improve and be a better person tomorrow. I mean, Absolutely. There's nothing called embarrassment. मेरे को तो वो है ही नहीं. Like you believe me or not, every single message that I get on my videos, I personally reply to them. Okay. Negative, positive, hate message or whatever, I respect them and I reply unless and until they really get touchy to me. Okay. Maybe one odd place out of the thousands of messages that I've got, I might have been a little aggressive, but otherwise I am super calm. I talk to them, I respond to them, and I try to be as transparent as possible. Absolutely. And I believe लाइफ में ना पेशेंस बहुत जरूरी है. एंड आई बिलीव आपने जो किया है ना, मतलब ये जर्नी का वो किया है, द काइंड ऑफ पेशेंस, द कामनेस. बाल ऐसे सफेद नहीं हुए दाढ़ी के, सर के तो कब के झड़ गए. अभी यही बाकी है. मतलब नहीं, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट यार. मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी. मे बी पॉसिबल हो सकता है,
but everybody wouldn't do this. I think the biggest thing that you need to have in your head when you start anything, not just this or anything for that matter, that no matter what, I want to achieve this. Correct. That brings a lot of ठहराव in your life. That'll bring a lot of calmness in your life. That'll bring a lot of maturity, lot of sense of responsibility, everything. So once you go through that phase, then nothing is impossible for you. Everything Correct. becomes impossible for you. Correct. And I am so happy for him because he always have things planned for him, because he has this goal, he has this place in his mind कि हाँ ठीक है मुझे ये स्पेस क्रिएट करना है, आई वांट टू अचीव दिस, तो ये मैं करके रहूंगा, चाहे ये करना पड़े वो करना पड़े. ड्यूरिंग हिज जर्नी आल्सो ही इंटरेक्टेड विद मी, बिकॉज मुझे नहीं पता था इस जर्नी के बारे में. ही टोल्ड यू नो अजय भाई आई एम कवरिंग दिस जर्नी ऑन एन ई स्कूटर, एंड आई आस्क्ड हिम ई स्कूटर पे जर्नी कवर कर रहे हो. आई सेड मैं क्या बोल सकता हूं, अभी ऑलरेडी जर्नी पे निकल चुके हैं. सो मेरा भी सेम रिएक्शन था, किसी का भी नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होगा. Two reactions. Yeah. I know. Either he's a nutcase or he does not know what he's doing. हाँ. यही था. तो मैं तो बोला यार दिस पर्सन इज कम्प्लीटली क्रेजी, लेकिन जो कर रहे हैं ये करके रहेगा. सो आई टोल्ड हिम ऑल द बेस्ट, यू आर गोना अचीव दिस. एंड आफ्टर दैट व्हेन ही केम एंड यू नो ही अचीव्ड दिस, द फ्रेंड्स बैशिंग हिम विद ऑल द जॉय, यू नो एयरपोर्ट पे वो फेटा वेटा पिना के ऑल दैट थिंग. I simply loved that. I just have to really thank these really good close friends of mine, Karthik, Ramnath, Achal, Guru, Sham, then Akshit. अक्षय देव नाम लेट याद आया थोड़ा. नहीं यार, मतलब sorry Akshit, don't mind. So Akshit, उसके बाद Naveen was there, and these guys drove all the way from Adyanadka Okay. to Bangalore and gave me surprise. Oh, Which was like heart touching for me. I'm seriously. you're really lucky. Yeah, I'm really lucky. And these guys came and you know, I was so emotional. I could not express it. I didn't express it. But then it was heart touching. Like बहुत ही बढ़िया था. यार दोस्तों का जब साथ हो ना, मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, जिन्होंने आपको इस जर्नी में सपोर्ट Oh किया. yeah, all of them. So you won't believe. I used to talk to each of these guys alternatively when I was like really mind boggled, or you know जहाँ पे मेरा F हो गया था दिमाग का. I used to really talk to them and they say don't worry, calm, it can happen. And you know there are some times that you know I was really frustrated, you know क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, like the heat is kicking in, there's so much happening. But then yeah, it's very important to sit down and think. Thank you so much Girish for taking this time and coming to Thank the you studio. so much. Thanks for Thank you. calling. And with that, I have completely hijacked Ajay show on Mirchi. आगे से मैं होस्ट करूंगा. You guys like it or not? I don't know. No, I feel no, कभी-कभार अगर मुझे लीव की जरूरत है, I think I have found an option. Replacement मिल गया है. गलती से भी वो मिस्टेक मत कर देना, लिसनर्स भाग जाएंगे सारे. नहीं भागेंगे. So thank you so much. Wishing you all the best once Thank you. again. Thank you. And I wish you good luck for India Book of Records. Thank you and so वो much. जब achieve होगा, I want you to make a promise that you will come again to Mirchi. पक्का. Okay. अब मुझे पहला कॉल करके बताना. पहला, you'll be the first, one among the first people to know after my family. Wonderful. तो मैं बताऊंगा भाई हो गया, वापस कभी आ जाओ. आ जाओ. So yes, keep supporting him and follow him on his page, that is Weekend on Wheels, that is on YouTube and also on Instagram. And also follow RJ Ajay, so he's gonna tell you his handle. Meanwhile, I'll also put it on the screen if you want to follow, and also in the description. So please. मैं भी ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे. Okay, so yes, you can follow me on my Instagram handle, that is Mirchi RJ, and also you can listen to my show. अगर सुबह कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, just tune into my show, and if you want to give inputs also, because I like spontaneity. So आप जो है क्या करो, डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो Instagram पर @Mirchi RJ, and listen to my show every morning 7 to 11 AM. That is What's Up Mangalore with Ajay, where I talk about Mangalore, I talk about nationally what is happening, I talk about the in and out, you know जो fun हो रहा है अपने Mangalore में, मस्ती हो रही है, you know all about your life, बहुत सारे sentiments, emotions, mix of everything. So it's a bhel puri which I make, but I make it very. कुठला चनबुरी हो. हाँ कुठला तो चरमुरी आओ. So आओ टेस्ट मोड पे रहे इरबल है. Yes, that's it. Until the next video, please keep it rolling. Bye bye guys. Bye bye.